So friends, some other followers are also with us, and we'll come to know about from them that why they are just here and how they are feeling here. What are the social reforming work of Sant Rampalji Maharaj? Some followers are here with us. Hello, ma'am. Where are you from? I'm Anshika and Yes. I'm from Madhya Pradesh. And What's your name, please? my name is Anshika. All right, you told Anshika. Anshika, tell me, can you please tell me the social reforming work of Sant Rampalji Maharaj? Yes, in today's time, I think Sant Rampalji Maharaj is the biggest social reformer who is performing various social reforming programs like he's making a dowry-free India, in which not only dowry-free India, it's very dowry-free world, because not only in India, he's doing dowry-free marriages all around the world in Pakistan, India, in Spain, England, and all over the country. In which, As I've heard about him, that his follower is there in all over the world. So suppose that the follower is in America, he's doing the dowry-free marriage over there also. yes, sir. He's doing the marriage over there also, means is all the followers are mean. Yes, sir. In all over the world, this is a rule of Sant Rampalji Maharaji that their devotee can't take dowry from anyone. They can't take dowry, and even they can't give dowry. And it's the biggest rule. If anyone break this rule, then Sant Rampalji Maharaji's rule is that then he is not devotee of Sant Rampalji Maharaji. Sant Rampalji Maharaji is not going to accept him as his devotee if he do this fault. So from these small steps, he is making And but any other work, any other social reforming work that Sant Rampalji Maharaj is doing for the society? He's making world addiction free. He's making intoxication prohibited, like alcohol consumption. He's stopping it, and all devotees of Sant Rampalji Maharaji is not doing any kind of intoxication, and they are not addicted to any kind of drugs or a cigarette, etc. And he's making people divine from devil, and he's making many life happy. And I don't have words to explain that what kind of society Sant Rampalji Maharaj is creating. One more question is also there in our mind, in the mind of our viewers. Who is Supreme God right now? Because there is a lot of questions. There are a lot of gods are there in India, especially in Hindu religion. The people are believing in Hanumanji, Krishnaji, Shivji. But we want to know that who is actual God and who is Supreme God. No doubt, after reading our holy scriptures, and I can see proudly that Sant Rampalji Maharaji, from evidences, they told us that Kabir Sahib Ji is Supreme God, and all the evidences about this is available in all the holy scriptures of all religions, not only in Hinduism, but with Hindu, in Muslim, Christian, Sikh, in all religions, these evidences are available that Supreme God is God Kabir. One more question is also there. In this modern time, there are a lot of spiritual teachers are there. We are not able to recognize that true spiritual teacher who is exactly telling the correct knowledge from all the scriptures. By you, yeah, in your mind, according to you, who is the spiritual teacher right now? Is complete. No doubt, Sant Rampalji Maharaj is the only one who is giving true spiritual knowledge in this entire world, and he is the only one who is, we can say that he is the only one who is true spiritual leader, a complete guru, Bakhabar, that great siren, whose description is there in Nostradamus philosophies, and Gita is also telling about him in Gita chapter 4 and shlok number 34. It is described that Gita Gyandata, that means the God who is giving knowledge of Gita, is telling to Arjun that go in the shelter of that true spiritual leader, Tatvadashi Sant. And also in chapter 15, Gita chapter 15, from verse shlok 1 to 5, it is described that Urdha Moolam Adha Sakam Ashvatam Prahuham or Chandasi Yasya Parnani Yastam Savedavit. That true spiritual leader, identification of the true spiritual leader is that he gave complete knowledge of that spiritual tree, Which is mentioned in Srimad Bhagavad Gita. You wanna say that? yeah, and yes, and tree And one more, means one, that
That spiritual tree means what? That all the complete lokas, all the gods and all. It's that tree mentioned all from parts of that tree. It is mentioned the power of all gods, and the supreme god will. Supreme God will through that true spiritual leader. Supreme God is telling us the true knowledge, and only that complete guru can decode that, and only he can explain that completely. That what is the reality of spirituality, the spiritual powers of God. He can tell all about that. One more question is also there in the mind that right now everybody is calling himself the true Sanatani, the true Hindu, and every saint is also saying, according to you, which one saint is the true Sanatani saint? No doubt Sant Rampal Ji Maharaj Ji, because we can see, practically we can see that what is Sant Rampal Ji Maharaj is doing for our society. He is giving true spiritual knowledge, and with this he is making all life, he is making this earth heaven, turning this earth from hell to heaven. As we can see, what kind of condition is created today. All humans are not behaving like humans, they are behaving like devils. But Sant Rampal Ji Maharajis are making that devils divine sound. There are many examples that even I can't explain. Just open your eye and see around this world that what Sant Rampal Ji Maharaj is doing for the society. Thank you so much, sister, for giving the answers of our questions, and our viewers are very much thankful to you for getting these all the answers from you. Thank you so much. बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सच्चा हिंदू कौन है? सच्चा हिंदू भैया वो है जो परमात्मा के विधान के अनुसार चले। जैसे सच्चा हिंदू वो है जो ना नशा करता हो, ना कोई बुराई करता हो, और सच्चा संत भी वही है जो अपने अनुयायियों को इन सब बुराइयों से दूर करे। आज का युवा समाज बिल्कुल खोखला होता जा रहा है। ये जो झूठे गुरु है, इन्होंने युवा समाज को बिल्कुल बुराई की तरफ धकेल दिया है। जैसे नशा हो और बॉलीवुड की वजह से बच्चे नकल करने लगे हैं बहुत ज्यादा। वो किसी बुराई से मतलब बचा नहीं पा रहे आज के युवा समाज को। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप संत रामपाल जी महाराज को देखें ना, तो युवा समाज को इतना बिल्कुल संस्कारों से भर दिया है उन्होंने कि वो बच्चे नशा करना तो दूर, उस नशे को हाथ भी नहीं लगाना चाहते कि ये बहुत बड़ी बुराई है। उस नशे को वो हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं। और दहेज प्रथा और आप मतलब बहुत से समाज सुधार का वो कार्य कर रहे हैं। और इसमें युवा बहन जी, आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे हिंदू हैं, या जो कथावाचक है वो सच्चे हिंदू हैं? जी, कथावाचक तो सिर्फ कथावाचक ही है। वो पैसे लेते हैं और कथा करते हैं। मतलब उन्होंने किसी के उद्धार से या किसी समाज सुधार से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कथाओं को पढ़ के सुनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और सच्चे संत वही हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? काजल नाम है मेरा। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी, सच्चा हिंदू कौन है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सच्चा हिंदू वो है जो अपने सदग्रंथों पर आधारित भक्ति करे। बहन जी, कुछ लोग भगवान शंकर जी के नाम पर नशा करते हैं, कहते हैं कि शंकर जी ने तो भांग पी थी, शंकर जी तो धतूरा खाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वे सच्चे हिंदू हैं? देखिए, जो ये कहते हैं कि भगवान शिव जी जो भांग धतूरा पीते हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है कि जो शिव जी है वो भांग या धतूरा इस प्रकार का कोई नशा करते थे। ये जब लोगों ने वो मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब मजे के लिए, अपने पीने के लिए ये सब अफवाह फैलाई है। बहन जी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई शिष्य नशा करता है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी शिष्य है। मतलब आप दिखा दो, या आप मतलब जैसे हमारी तरफ से कहा जाता है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के इतने शिष्य है, उसमें से आप एक भी शिष्य को ले लो, वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। यहाँ तक कि मतलब नशा करने वाले के पास मतलब वो उनको भी मतलब बताते हैं कि भाई ये नशा नहीं करना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है। थैंक यू सो मच बहन जी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति दासी है। बहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज और क्या कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए? संत रामपाल जी महाराज समाज को नशे मुक्त से बिल्कुल दूर कर रहे हैं, और जो भी जितने भी युवा हैं वो कम एज वाले जो है वो भी अपने घर परिवार वालों से दूर होके भी नशा करते हैं। वो फिर छुप छुप के मतलब ऐसे करते हैं, वो बहुत हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी
के जितने भी अनुयायी आश्रम में है, जितने भी भगत आत्माएं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो नशे को छूते तक नहीं है। जिससे बहन जी एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्म गुरुओं को अपने ज्ञान चर्चा में शामिल करने के लिए बोला था, लेकिन उनके पास क का भी ज्ञान नहीं है। वो बोलेंगे क्या? वो शुद्ध ग्रंथों को खोल के अपने अनुयायियों को दिखाते नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने जो सुना, जो जिससे वो सोचते हैं, क्योंकि जितनी भी आम जनता है सबके मन में ये बना हुआ कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, और वो सब उन्हीं को भगवान बताते हैं। बहन जी आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं? क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्य जितने भी देवी देवता हैं उनकी भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, तीनों देवा कमन दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन गुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी हम इनकी भक्ति बिल्कुल भी नहीं छुड़वा सकते हैं। हमारी मतलब क्या वो है कि हम इनकी भक्ति छुड़वाएंगे? तो सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज में इनके जो वास्तविक जो इनकी भक्ति है, जिनसे हमें ये लाभ देंगे, जैसे जितने भी माताएं बहनें ये व्रत करती है, सोमवार का व्रत है, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको फिर भी उनके घरों में बहुत सारे आर्थिक बहुत कष्ट हैं, लेकिन वो फिर बोलते हैं कि हमें लाभ नहीं हो रहे, हम इतनी भक्ति करते हैं। क्योंकि आप जो है शास्त्रों को खोल के ये नहीं देख पा रहे हो कि उसमें लिखा क्या है, व्रत क्यों करना है। हमें भूखा मरने से कोई भक्ति नहीं होती, ना हमें कोई भगवान प्राप्त हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी, आपने व्रत के बारे में बताया, तो बहनों की ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। अभी एक व्रत आ रहा है यहाँ पर, उसमें वट वृक्ष की पूजा होती है, उसका उद्देश्य भी पति की लंबी आयु के लिए होता है। आप मानते हैं कि करवा चौथ के व्रत से या वट वृक्ष के जो एक पूर्णिमा आने वाली है उसके व्रत रखने से यहाँ पर ये जो पति की उम्र बढ़ती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो हम अपनी साथ में परमात्मा लिखते हैं, हम साथ लेके आते हैं, और वो केवल कबीर परमात्मा है जो हमारी उम्र को बढ़ा सकते हैं। जो कृष्ण जी थे, उनके खुद परिवार में जो थे, उनकी वो आयु नहीं बढ़ा सके थे। अभिमन्यु साहब, हाँ, अभिमन्यु, वो अगर भगवान होते तो वो खुद जीवित कर सकते थे। उनमें इतनी ताकत मानते हो आप। अब जैसे रक्षाबंधन का त्योहार आता है, सब अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उनको राखी बांधते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अब जिनके भाई नहीं है, जिनके भाई फिर वो बैठ के रोती है उस दिन, वो कहाँ गए फिर वो? अगर रक्षाबंधन से, राखी से एक उससे आयु बढ़ सके तो कोई मरे ना, या मरी हो जाएंगे। ऐसे तो सब। बहन जी एक बात बताइए, अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी में क्या अंतर है? जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं, जितने भी इस विश्व में हैं, तो ये एक दोहा है कबीर साहिब जी का कि कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंदर राख्या कोई। इनकी जो वेशभूषा है ना, वो ये सोचते हैं कि हमने मूंड मुंडा लिया है, तिलक लगा लिया, गले में कंठी माला पहन रखी है, अन्य वेशभूषा धारण कर रखी है, उससे कुछ नहीं होता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा इतनी साधारण है, और जितने भी संत हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, उन्होंने आज तक भी जितने भी सत्संग किए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी भी उन्होंने धर्म शास्त्रों को, गीता जी को खोल के तो बताए, भाई खोल के बता ही नहीं रहे। अगर वो इतने ज्ञानी हैं, इतने अपने आप को समझते हैं, तो जितने भी सब लोग अपना कल्याण करवाना चाहते हैं, जितने उनके पास जा रहे हैं उनमें भी भक्ति भाव है, वो लोग भी अपना जीवन का मोक्ष करवाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके जाल में फंस चुके हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो क्या बता रहे हैं, वो सिर्फ उनके जो बोलते हैं उनको सत्य मानते हैं। मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि असली संत और नकली संत की क्या पहचान है? जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो अपने सदग्रंथों के आधार पर अपने अनुयायियों को भक्ति साधना देते हैं। गीता जी में प्रमाण बताते हैं, बिल्कुल एक एक अक्षर को बताते हैं परमात्मा। और जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं, वो मतलब सदग्रंथों के आधार पर बिल्कुल भी भक्ति नहीं करवाते हैं। जी, मेरा नाम ज्योति है, मैं सोनीपत से हूँ। मैं जी क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के कार्यों के बारे में आपकी क्या राय है? संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं जो पूरे समाज का सुधार चाहते हैं, ना सिर्फ कुछ लोगों का, पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए वो इस धरती पे आए हैं। वो दहेज को रिमूव करना चाहते हैं इस समाज से बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे क्या क्या समस्या है ये बताइए। दहेज जो है वो एक बुराई है पूरे समाज की, जिससे हर एक पीड़ित है। दहेज की वजह से जो बेटियां हैं उनको बोझ माना जाता है अपने ऊपर। और ये चाहते हैं जो भी समाज है, हमारे घर पे बेटी ना हो,
बेटी को क्योंकि बोझ माना जाता है सिर्फ दहेज की वजह से, क्योंकि जब शादी की जाती है तो उस दहेज को जुटाने में ही जो घर है उनका ऑलमोस्ट सारा ही जो मनी है वो खत्म हो जाता है। इसी वजह से वो उनको मानते हैं कि जो बेटी है हमारे ऊपर एक बोझ है और हमारे घर पैदा ना हो। तो इस वजह से इस बुराई को संत रामपाल जी महाराज ने आई थिंक टोटली रिमूव करने के लिए जो यहाँ पे रमेणी की जाती है, शादी की जाती है, वो वहाँ पे कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ 15-16 मिनट की रमेणी होती है जिससे पूरी शादी हो जाती है, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं होता और शादी पे जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा बच जाता है, जिस वजह से समाज में एक सुधार आएगा कि डोरी सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर सभी सारे समाज के लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके और उनसे अपना कल्याण करवाए और यहाँ पे जो भी समाज सुधार के लिए कार्य हो रहे हैं उनमें जो है पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? कीर्ति दासी, कहाँ से हो आप? रोहतक से। कौन सी क्लास में हो आप? मैं अभी 10th क्लास में हूँ। आप 10th क्लास में हो और आप सत्संग में आए हो। इस उम्र के बच्चे तो अक्सर अपने करियर पे ध्यान देते हैं, शिक्षा पे ध्यान देते हैं, क्या जरूरत है आपको अभी इसे सत्संग में आने की? देखिए, जिस प्रकार हमें सामाजिक आर्थिक ज्ञान के बारे में जानने के लिए पढ़ाई की जरूरत है, उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक ज्ञान के टच में रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अब एक माँ बाप अपने बच्चे को 20, 22, 25 साल तक एक पढ़ाई के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, तो ये तो आध्यात्मिक भक्ति है। ये अगर कोई इंसान सच में सच्चे दिल से भक्ति करता है, सत ग्रंथों के अनुसार सच्चे गुरु से, सतगुरु से नाम दीक्षा लेके भक्ति करता है, तो 2 रोटी का जुगाड़ तो भगवान अपने आप ही कर देगा। अब कोई बच्चा है, वो अपनी माँ के जब गर्भ में होता है तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है, जब वहां पे भगवान अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता, तो क्या अब हम भगवान से इतने दूर हो गए हैं जो भगवान हमें एक रोजी रोटी भी नहीं दे सकता, एक छत्र छाया भी नहीं दे सकता? तो जो सतगुरु है, सच्चा जो गुरु है, उसके पास उसके वचन में शक्ति होती है, उसके नाम में शक्ति होती है, जो एक मतलब बहुत अच्छा समाज भी सुधार है संत रामपाल जी महाराज जी। और सबको आध्यात्मिकता के टच में रहना चाहिए, वो भी सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेके, जो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमारे सतग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। आपने बात की सच्चे गुरु को लेके, सच्चा गुरु कौन है? देवकीनंदन ठाकुर भी कहते हैं कि हम सच्चे गुरु हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि हम सच्चे गुरु हैं, अन्य कथावाचक है वो भी कह रहे हैं हम सच्चे गुरु हैं। तो सच्चा गुरु कौन है ये भी तो बताइए मैम। देखिए, सच्चा गुरु आज के समय में हर एक इंसान ने मतलब ये सोच लिया है कि भगवान पाना है, पर किसी के पास भी ये नहीं है कि भगवान मिलने के लिए सच्चा गुरु की बाखबर की आवश्यकता है। अब जैसे कि सतगुरु वो है जो हमारे सतग्रंथों के अनुसार भक्ति बताए। अब आज के समय में संत तो लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, घर घर में, गांव गांव में इतने संत है, परंतु जो हमारे सतग्रंथों के अनुसार भक्ति बताए। अब हमारे वेदों में प्रमाण है कि सच्चा संत वो है जो उल्टे लटके वृक्ष को, उल्टे लटके हुए वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष के हर एक उसके हर एक चीज को अच्छे से डिफाइन करके बताए, उसकी डेफिनेशन बताए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उल्टे लटके वृक्ष की भी डेफिनेशन बताई। उसके अलावा और भी जितने भी जो भी मतलब ये जब भविष्यवाणी की गई है आज के समय में सतगुरु के ऊपर कि जो सच्चा गुरु है उस पे देशद्रोह का इल्जाम लगेगा, वो जाट जाति में जन्म लेगा, तो सभी भविष्यवाणियां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पर बिल्कुल फिट हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में सच्चे गुरु हैं और हर एक मानव समाज को चाहिए कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन का कल्याण करवाए। आपने बताया कि जो सदग्रंथों के अनुसार बताता है वो सच्चा गुरु है, आई एग्री विद योर पॉइंट। लेकिन जिस प्रकार आपने भविष्यवक्ताओं का भी जिक्र किया, यहाँ पर कोई भविष्यवक्ता जो महान हो, जिसकी भविष्यवाणी बहुत ज्यादा महान हो, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई भविष्यवाणी कर रखी हो, क्या आप बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि नास्त्री अदमस जी हैं, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है। उसके अलावा जो बहुत से जो भविष्यवक्ताएं हैं जो कि उनकी जो भविष्यवाणी उन्होंने सामान्यतः जो अभी की थी कि टेक्नोलॉजी पर भी की थी और उनकी पूरी तरह सच्ची भविष्यवाणियां निकल रही है, तो इससे हमें एक उमंग उठती है कि ये भविष्यवक्ता सच मतलब इनकी भविष्यवाणी सच्ची है। और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज सतगुरु पे बार बार इंडिया की तरफ, वो संत पंजाब में जन्म लेगा जहाँ 5 नदियां बहती हैं, उसके सिर पर सफेद बाल होंगे, वो संत उसके तेज होगा सारे शरीर पे, तो वो सब भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज जी पर बिल्कुल फिट हैं।
संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जिनका लाखों वर्षों पहले से जिक्र हमेशा रहता था। और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कबीर साहिब जी, गरीबदास जी, जितने भी मतलब संत रहे हैं उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको थोड़ी बहुत परेशानियां हुई हैं, क्योंकि कोई भी सच्चा मार्ग सबसे अलग हट के अगर कोई सत्य मार्ग पर चलता है तो उसे प्रॉब्लम्स फेसेस करनी ही पड़ती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, परंतु सत्य ज्ञान कहते हैं कि चोर चुरावे तोमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डा वो ऊपर, सच्चाई छानी में। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और आज इसकी बदौलत हम देख पा रहे हैं कि 4.5 करोड़ तक संत रामपाल जी महाराज जी की संगत है। मैं एक बात बताइए, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और मतलब बहुत सारे आरोप भी तो लगाए गए हैं, आखिरकार उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आए दिन उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, आए दिन उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जेल भी हुई, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए, आखिरकार क्या कारण है उनको अक्सर कर हम विवादों में घिरा हुआ पाते हैं? देखिए, जो श्री राम जी थे उन्होंने अपने सारे जीवन में बहुत सारी प्रताड़नाएं सही हैं। उन्होंने सीता जी के वियोग में अपना जीवन काटा। उसी प्रकार श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे जो प्रताड़नाएं सही हैं, उनका तो जन्म तक जेल में हुआ था। और उसके अलावा गांधी जी हैं, भगत सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स फेसेस की थी। तो कोई भी अगर अलग चलता है, सच्चे ज्ञान की तरफ चलता है, तो उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेसेस करनी ही पड़ती हैं। नमस्कार बहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लेकर? सच्चाई भगत जी, संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सुधारक है, क्योंकि उनकी वजह से दुनिया में हर जगह से जो बुराइयां फैली हुई है वो सब दूर हो रही है। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे देसी घी के भंडारे चला रखे 11 स्थानों पर, जहाँ पर भक्त समाज के साथ साथ पूरे समाज से कोई भी इंसान आके निःशुल्क खा सकता है। साफ सफाई की विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं, ब्लड कैंप भी लगाया जाता है, नेत्र जांच शिविर भी किया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो मतलब एक पुस्तक मात्र पढ़ने से आदमी नशा छोड़ देता है, तो नशा, ये जो नशे है इसकी वजह से पूरा समाज दुखी रहता है। कोई भी इंसान है जो रोजी रोटी के लिए काम करता है, वो क्या करता है, वो शाम को नशा करके घर पे जाता है, मारपीट करता है। उनके बच्चे भी दुखी रहते हैं, ना वो पढ़ाई कर पाते हैं, वो वैसे सुखी रहते हैं। इसलिए जो वास्तव में असली समाज सुधारक है वो संत रामपाल जी महाराज ही है हमारे। 3 दिन में यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम हुए बहन जी? यहाँ पर देखो बहुत सारे दहेज मुक्त विवाह करवाए गए हैं, यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, यहाँ पे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी लगाए गए हैं, और भी मतलब बहुत सारे यहाँ पे खाना है जो भंडारा है वो तो निःशुल्क चलता ही है 24 घंटे। वो भक्तों के लिए नहीं, वो सब समाज के लिए चलता है। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका और ये कितना जरूरी है, और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोग बाय अरेंजिंग द ब्लड डोनेशन कैंप? ब्लड डोनेशन देखो, हर एक इंसान यहाँ पे हर मिनट में मतलब इतने सड़क हादसे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है खून की कमी की वजह से मर जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के प्रेरित होते हैं देने के लिए, और उनको देख के और लोगों को भी ये होता है कि मानवता की भावना जागृत होती है। इसलिए ये रक्तदान शिविर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सच्चाई भगत जी, मेरा नाम भारती दासी है। कहाँ से हैं आप? हम रोहतक से ही हैं। बहन जी, आप रोहतक से, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया गया है, आपको यहाँ पर कैसा लगा? क्या कहना चाहिए आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में? यहाँ पे आश्रम में आके हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, और भंडारे की व्यवस्था, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है ना बहुत अच्छी की गई है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे है ना दहेज मुक्ति विवाह हुआ है, और नशा मुक्ति केंद्र भी चलाए गए हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप जैसे और अन्य भी बहुत सारे कैंप चलाए गए हैं, जिसमें समाज को बताया गया है कि हम किस प्रकार से मतलब अपने खुद को और समाज को इन चीजों से दूर, बुराइयों से दूर रख सकते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य नशा नहीं करता? नहीं, नॉट इवन ए सिंगल भक्त, नो। What do you want to say? Sant Rampal ji Maharaj want to make the India dowry free? या यस। Thank you so much बहन जी, thank you so much। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा दासी है। कहाँ से हैं आप? मैं गन्नौर साइड से। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों परिवारों का नशा छुड़वाया है, कैसा लगता है जब एक परिवार में जो लोग हैं नशा छोड़ देते हैं? ये बहुत अच्छा लगता है जी। आज हमारे समाज में ये जो नशा है ये सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है। ये सारा जो आदमी नशा करता है उसका सारा परिवार बहुत दुखी रहता है, इसीलिए। बहन जी,
जो भी भगत संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर लेता है वो नशे को पूरी तरह से छोड़ देता है। बहन जी बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में क्या क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे कि एक हमारे समाज में दहेज प्रथा जैसी बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज पर, जहाँ पर माँ बाप को बहुत चिंता रहती है अपने बच्चों की शादी के बारे में। और जब अगले जैसे कि बहुत ज्यादा दहेज लेते हैं बेटी वालों से और फिर बाद में मार भी देते हैं बेटियों को, जिंदा भी जला दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज के मतलब जो नाम दीक्षा लेते हैं वो दहेज मुक्त विवाह होता है यहाँ पे, और दहेज प्रथा जैसी बीमारी को पूरी तरह से दूर करे संत रामपाल जी महाराज। थैंक यू सो मच बहन जी।